We are talking about the network as well as the computer network or computer networking. Firstly, a network set up by the connecting two or more computers and other supporting hardware devices, that is routers, switches, hub. So the communication channels is known as the computer network. It enables computer to communicate with each other, to share commands, data, including the hardware and software resources. Each computer devices in a network is called node or stations. The nodes can be routers, personal computers, and servers, hub, etc. Data transformation is done by the network using rules known as the protocols. The protocols are the set of rules which every node of the network should follow for transferring information over the wired or wireless network. Next, we are watching the working of the computer network. The nodes like computer switches and modems are the source of the generating and transmitting data. Then the link is used for the bond nodes. The following the protocols, node will be the transfer and receive data via connections. And uses of the computer network allow the share resources such as the printers, scanners, share expensive softwares, database among the network users, exchange of the data information among users through a network. Uh, we have studied the popular computer networks. First is local area network, second is metropolitan area networks, third is wide area network. We studied in detail local area network. Basically, this network operate in the small areas, that is the companies, schools, and other organizations. Local area network may be wired or wireless network and combination of the both, uh, generally connected using the Ethernet cables, which offers an interface to connect multiple devices like routers, switches, hub, computers, and features and base studies features of the LAN, speed 100 Mbps to 1000 Mbps, and LAN included in the many topologies, was Ringnes and the star topologies. And also we studied benefits of the local area network in the last class. We offers the high speed compared to the wide area network and the metropolitan area network, and it is less expensive and easy to install and maintain. It can be wired or wireless or a combination of the both, we studied in the previous slides. And we studied primary functions of the LAN, sharing of resources, sharing of printers. Uh, we studied primary function of the LAN. First is sharing of the resources, and also studied sharing of the printers, sharing of the computational capabilities. It allows the client to access the computational power of a server. Many companies use work from home, depending on this function, sharing of the computational capabilities. And fourth function is the mail and message related to services. It allows sending and receiving mails between the computers of the local area network. You are required to have the mail server for this database service and also the database services. It also allows the storing and retrieving data with the help of the database service. This is the most important of the function of the local area network. And next network studied metropolitan area network. Basically, it greater than the local area network spread over the large geographical areas such as the metro city or town. Basically, this is the connecting the local area network using the routers and local telephone exchange line. Can be operated by the private companies or maybe the service provided by the companies such as the local telephone companies. Many protocols are used in metropolitan area network, that is the X125, uh, same relay, asynchronous transfer mode, XDSL, ISDN, ADSL, and more.
Area covered by the metropolitan area network is larger than the local area network and smaller than the wide area network. Range of this network 5 to 50 kilometers. And we studied example of metropolitan area network. First is the cable TV network is general example of this network. WiMAX connected branches of a school in a city, connected fire station in a city. Is also example of metropolitan area network. And also studied features of the metropolitan area networks. And um, we were watching the advantage of metropolitan area network. Less expensive, high speed, local emails. It can send local emails fast, access to the internet, allow you to share your internet connection. Just the multiple users can be access the high speed internet. Easy to set up. You can easily set up the metropolitan area network while connecting multiple local area networks. High security, uh, more secure than the wide area network. And we were watching the next network, wide area network, also known as WAN. This is the most important network uh, among the recording in progress. Wide area network extend over the large geographical areas. It is not confined within the office. Local area network includes the uh, within within building, within office, within schools, within cities or towns. Metropolitan area network includes or consists of town or metro cities. And wide area networks uh, networks include the countries, state all over the world. Example, metropolitan area covers up to 50 kilometers, whereas wide area network, example 1000 kilometer or more. This network work by using the TCP IP protocols in combination with the networking devices such as the switches, routers, firewalls, modems. It does not connect individual computers, rather they are designed to link a small network like local area networks and the metropolitan area networks. The computer connected to the wide area network through the public networks such as the telephone systems, leased lines, or satellite. Next, we studied example of the wide area network, internet, U.S. Defense Department, stock exchange network, railway reservation systems, big banks cash dispensers, that are also known as the ATM machines, satellite systems. Advantages of wide area network. First advantages of the large network range. Span a large geographical area of 2000 kilometer or more. Example, one country to another countries. Connectivity of one country to another. It provides the facilities of the centralized data. It allows you different office branches to use your head office server for retrieving and sharing data. You don't need to via email servers, file servers, and backup servers. Third advantage is get updated file and data. It provides an ideal platform for companies who need the lab server for their employees to access updated file within the seconds. Fourth advantage is the high bandwidth, high speed. It offers a high bandwidth than the normal broadband connections. It can increase the productivity of your company by offering the uninterrupted data transfer and communications. Last is, and most important, workload distribution. It helps to distribute your workload to other locations. You can hire employees in different countries and assign them to the work from the offices. These are the list of the advantages of the wide area network.
Standards for the good network. First is the performance. Second is transmit time. Third is response time. And performance is depend on the transmit time and response time. Fourth standard is reliability. Basically, reliability performance measured using measurement of the performance using transmit time and response time. The network quality will be improved. The performance of the network is high. Network quality will be less if the performance of network is low. Transmit time taken to send a message from one device to another device called transmission time. And response time passed from inquiry to response is called the response time. Total performance of network also depends on the many factors, and that is topologies, several users, and software and hardware. And fourth one is reliability. Reliability in a network state whether the data delivery to the authorized and the intended users was done correctly. The reliability of a network is one of the important factors for the delivery of data in the layers of the OSI models. OSI models OSI model was not studied in the previous class, and next class we will studying. And fourth one is the security. Security is the main component of the standards for the good network. Network security involves the protection of the data for unintended users, protections of data from the damage and the disruption. Security in the network avoids data breaches and the data loss. And next studies most important part of the network. This is known as the network topologies. Topologies means physical arrangement and architectures of the all the nodes and components of the network. Okay. Or general terms, topologies define the structure of the entire network. They are divided into 5 types. First is bus topology. First topology. Second, star topology. Third, ring topologies. Fourth one is mesh topology, and fifth one is tree topologies. Basically, topologies plays a critical role in determining the networks. First is performance, second is reliability, and third is scalability. If we are this one is was studied types of the network topologies. So we were talking about the two types of topologies. First is physical topologies, and second is logical topologies. Physical topology basically it is actual arrangement of the cables and devices in the network. Logical topologies describe the flow of the data within the network, regardless of the physical arrangement. And bus topologies, it is the arrangement of the nodes connected through the interface. Architecture of the bus topologies is shown. Single line, single cables and connected to the host by the single cables, and single cables is also known as the network backbone. This topology is bus topology. Second topology is studied in previous class, ring topologies. Ring topologies basically computers are connected in the circular and closed loop. Circular and closed loop according to this.
Star topologies, all the computers are separately connected to the central node or connection point, which can be server, a hub, router, or switches. This hub is the central node, and many computers, known as the host, connected by the hub. And uh, data exchange from hub or to the every host. This architectures and communications and connection is also known as the point-to-point connections between the host and hub. This architecture is also known as the star topologies. And fourth one is the mesh topologies. Mesh topology basically every device is connected to the another device in a network using a point-to-point connections, or generally known as the dedicated connections. Link transport data between the two devices. This architecture of mesh topology. Every node connected with the another node. Every node have dedicated connections. The number of connections calculated by the formula n into n minus 1 divided by 2, n is to represent the number of the nodes. Last one is the tree topologies. Tree topology basically combination of the star and bus topologies. Nodes are connected to a star topology, and all the star connected nodes are placed in the bus topologies. This architecture is so on the tree topologies. And base studies, application of the network topologies, evolution of the network topologies, early networks, modern networks, and software-defined networks already studied. And wireless network topologies, three types of the topologies: point-to-point connections, point-to-multipoint connection, and mesh wireless connections. Designing network topologies. Today's topic is designing of network topologies. We are talking about the designing of the network topologies. Uh, some factors is responsible for the designing of network topologies. First is the cost. Consider the cost of the installation, maintenance, equipment, choose a topology that balance performance with budget constraint. Second is performance. Evaluate data speed and latency requirements. Select a topologies that meets the performance demands of the intended application. Third is scalability. Ensure the network can grow and adapt the future needs. Choose a topologies that allows for expansion and flexibility. Last one is the reliability. Is redundancy and fault tolerance. Select the topology that minimize downtime and ensure continuous connectivity. आज की जो क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से डिजाइन करें या किस तरीके से इतनी सारी टोपोलॉजीज पढ़ी हमने, सबके फायदे नुकसान, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें देखी। उसके बाद ये कैसे पता चलेगा कि किस टोपोलॉजीज को हम यूज करें, या जो भी आर्किटेक्चर उसका बनाना है या जो कनेक्टिविटी रखनी है तो कौन सा अरेंजमेंट रखें। तो वो 4 पैरामीटर हैं जिन पे डिपेंड करेगा। पहली कॉस्ट, मतलब उसमें पैसा लगेगा आपके पास किस तरीके से। मान के चलो मैं एक घर में लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सोचूंगा सस्ते से सस्ता लग जाए। तो उसकी कॉस्ट भी, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इक्विपमेंट के लिए ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। दूसरा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या रखनी है मुझे, जैसे मुझे मैश वाला यूज करना, मुझे बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज करना नेटवर्क तो मैश टोपोलॉजी यूज करूंगा। मुझे लो के लिए करना है तो बस टोपोलॉजी। तो उसमें मेरा किससे काम हो रहा है तो वो मैं देख लूंगा। मतलब पहला कॉस्ट, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा स्केलेबिलिटी भी। मान के चलो पहले तो छोटा नेटवर्क है वो, फ्यूचर में वो नेटवर्क बड़ा हुआ
तो क्या ऐसा तो नहीं कि पूरा नेटवर्क ही चेंज करना पड़ेगा? तो उसके स्केलेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में मेरा एक्सटेंड भी करना है। जैसे एक एग्जांपल देखा है, जैसे हमने कोई घर बनवाया, घर बनवाने के बाद भी फ्यूचर में उसका पहले एक फ्लोर बना, उसके बाद फ्यूचर में सेकंड फ्लोर बनवाया, थर्ड फ्लोर बनवाया। तो जब फर्स्ट फ्लोर बना रहे होते हैं तब ये देखकर चलते हैं कि कितने सारे फ्लोर बनाने हैं, उस हिसाब से देखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि उसे तुड़वा के, कई बार तुड़वाना भी होता है तो वो अलग एक एस्पेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, वो स्केलेबिलिटी वाला भी फीचर्स देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ये फैक्टर भी देखें। रिलायबिलिटी वाला भी फॉल्ट टॉलरेंस उसका क्या है, कहीं से कहीं कोई खराब हो गया तो वो पता चल जाए आसानी से क्या सारी चीजें हैं। तो वो सब, तो ये 4 फीचर्स या 4 फैक्टर्स होंगे जो कि किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए देखे जाते हैं पहले। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजीज की बात करें तो एक वो तो पिछली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं एक घर में लगाना है, सिंपल सा एक नेटवर्क लगाना है, तो बस टोपोलॉजीज में लगा देंगे। एक सिंगल राउटर के साथ में, सिंगल राउटर एक हब की तरह हो गया है, सेंट्रल नोड हो गया, उससे टीवी भी कनेक्ट है, मोबाइल फोन भी कनेक्ट है, टैबलेट भी कनेक्ट है, वो हो गया। तो उस तरीके का जो नेटवर्क होगा या टोपोलॉजीज होगी, वो स्टेट टोपोलॉजीज होगी। रिंग टोपोलॉजीज मतलब जितने भी मेट्रो एरिया नेटवर्क्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो रिंग टोपोलॉजीज में होते हैं। मतलब एक जगह से डिस्कनेक्ट होगा तो वो आसानी से फॉल्ट टॉलरेंस या हाई बैंडविड्थ वो सारी चीजें बनी रहेंगी। मेश टोपोलॉजीज जैसे गूगल वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं या एयरप्लेन्स नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डेडिकेशन कनेक्शन चाहिए होते हैं, वहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होती है किसी भी फेलवर की, तो उस जगह मेश टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द टोपोलॉजीज, क्या उसके आगे चल के क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, या जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिजिक्स स्टूडेंट है उनके लिए रिसर्च टॉपिक भी क्या हो सकते हैं। और डायनामिक टोपोलॉजीज, अभी तक क्या है, हमने फिक्स टोपोलॉजीज पढ़ी, नाम अलग अलग दिए हुए हैं, कोई बस टोपोलॉजी है, कोई स्टार टोपोलॉजी है, कोई कुछ है। तो लेकिन डायनामिक टोपोलॉजीज नहीं है। डायनामिक टोपोलॉजीज क्या है कि अडेप्ट टू द चेंजिंग नेटवर्क कंडीशन, adapt to changing network conditions such as the mobile network where devices move and connection change frequently. It dynamically adjust paths and routes for optimal performance. मतलब जब जरूरत पड़े डिवाइस को इधर से उधर चेंज करना है तो वो अपने आप वो चेंज हो जाए टोपोलॉजीज, और डायनामिक हो, कोई इंस्टॉलेशन या कोई सारी चीजें वो ना करनी पड़े। या इसके एग्जांपल के लिए भी देखा होगा, जैसे अभी घरों में अगर एयर फाइबर लगवाएं, जियो का लगवाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो लोकेशन वाइज लगती है। उसे अगर हमारी लोकेशन चेंज हो गई, उसे अगर चेंज कराएंगे तो दोबारा से री इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। अगर वो डायनामिक टोपोलॉजी होती तो वो री इंस्टॉलेशन नहीं कराना पड़ता। तो उसकी गुंजाइश है, मतलब ये फ्यूचर में हो सकता है। वर्चुअल टोपोलॉजीज, वर्चुअल टोपोलॉजीज में मतलब इसके दो आर्किटेक्चर थे, एक फिजिकल वाला था, एक लॉजिकल वाला था। तो ये यहाँ पर लॉजिकल वाले के लिए कर रहे हैं इसमें। तो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ओवर द फिजिकल सेटअप commonly used in cloud environment where virtual machines and applications can be dynamically provisioned to reconfigure. And last one is the topologies in the IoT network. IoT network, basically IoT is Internet of Things. Every application uh, consists IoT networks. अभी भी जितने एप्लीकेशंस हैं जो IoT पे काम कर रही हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ। जैसे कि अभी अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे एक टैक्सी मंगानी है, तो टैक्सी मंगाएंगे तो एक में मेरे पास एप्लीकेशन होगी जो अलग अलग कंपनी की हो सकती है, ओला वाली भी हो सकती है, उबर वाली भी हो सकती है, राइड टैक्सी हो सकती है। तो उस एप्लीकेशन पे मैं देख लूंगा नियर बाय में कौन कौन सी अवेलेबल है, और फिर वहां से मैं सेलेक्ट करके उस टैक्सी को बुला लूंगा। जैसे वो टैक्सी भी आ रही होगी तो मुझे भी उसकी लोकेशन पता चलेगी। और उसमें कुछ जो सेंसर्स, जो जीपीएस होंगे, उनकी लाइव लोकेशन उस एप्लीकेशन पे आ रही होगी। उस एप्लीकेशन को यूज किया मैंने अपने मोबाइल फोन से, और लेकिन जो सेंसर्स लगे हैं, जीपीएस लगे हैं, उस गाड़ी में लगे हैं।
तो वो पूरा जो सिस्टम बना है, पूरी जो कॉन्सेप्ट बना है, वो एक आईओटी एप्लीकेशन है। दूसरा एग्जांपल खाने के लिए, अगर स्विगी या जोमेटो से मुझे खाना भी मंगाया, वो भी एक पूरी आईओटी एप्लीकेशन है। उसे यूज करके वो खाना एक होटल से या दूसरे आता है। वो एक कोई भी स्विगी या कोई भी जोमेटो कोई खाना नहीं बनाता है, उन्होंने रेस्टोरेंट या ढाबे कनेक्ट करके रखे हैं। तो वो किस तरीके से कनेक्ट है, किस तरीके से पूरा एक्सेस हो रहा है, वो भी एक आईओटी एप्लीकेशन है। तो वो आर्किटेक्चर किस तरीके से वो आगे बढ़ाने हैं, किस तरीके से उसे हाइब्रिड बनाना है, इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। फ्यूचर में ये सारी चीजें हो सकती हैं, और किस तरीके से इसका नेटवर्क बनाया जाए। क्योंकि हर दिन, अगर मैं जोमेटो की बात करूं, तो हर कोई होटल वाला, ढाबे वाला चाहता है कि मैं जोमेटो से लिंक करूं। तो हर दिन लिंक होते जा रहे हैं, तो उसकी टोपोलॉजी, नेटवर्क चेंज होते जा रहे होंगे। अगर वो डायनामिक टोपोलॉजीज होंगे, तो वो आसानी से कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो उसमें कॉन्फ़िगर या रिकंसीडर करना बड़ा आसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया है, टोपोलॉजी इन आईओटी और नेटवर्क। इसके बाद जो उसका आर्किटेक्चर की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर की, और देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सेकंड इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, थर्ड इज हाइब्रिड architecture, hybrid network. First is client server architecture, basically consists of a system that manages and deliver the resources via the network that the client requests. In the client server architecture, each and every computer or process on the network is considered as a client or servers. The servers perform various operations to satisfy the client request. पूरा कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें, वो तीन तरह के होते हैं: क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर्किटेक्चर। तो इसका एक एग्जांपल इस आर्किटेक्चर का देखें। जैसे कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जैसे गूगल पे जाके मुझे कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है, अपने इंस्टीट्यूट की करनी है, किसी भी होटल की करनी है, कुछ भी करना है, तो कोई भी वेबसाइट जो रन हो रही होती है, वो किसी न किसी सर्वर पर रन हो रही होगी। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट का सर्वर होगा, होटल की बात करें तो होटल का सर्वर होगा। वो हालांकि ये अलग बात है कि वो या सर्वर किराए पे लिया गया होगा या खुद उनका होगा। तो जो हम उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्लाइंट हो गए, यूजर हो गए, और हमारे क्लाइंट की डिमांड पर वो हमें एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है, या वो सारी चीजें जो ओपन हम करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट में, वो हो पा रहा है। इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क होता है, वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। तो वहां से यूजर की डिमांड पे या क्लाइंट की डिमांड पर सर्वर डेटा को फैच करता है। क्लाइंट उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, एक्सेस करेगा, वो डेटा पहुंचाएगा। मतलब सर्वर परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशन टू सेटिस्फाई द क्लाइंट रिक्वेस्ट। अगर उसका काम कैसे करता है वो, इनिशियली बाय यूजिंग द नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइसेस, द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट। दोनों ही सर्वर तो पहले से ही नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि वो नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, वहां पर तो चलता ही रहेगा। नेटवर्क मतलब इंटरनेट। यूजर के पास इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, या किसी न किसी नेटवर्क का होना जरूरी है, तब जाके वो एक्सेस कर पाएगा। तो वो फिर नेटवर्क के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, नेटवर्क के पास वो सॉरी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर उसे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। अगर जो सर्वर पब्लिक यूज के लिए उसे ओपनली बनाया गया होगा या ओपन रखा होगा, तो वो एग्री करेगा, उसे प्रोसेस जो रिक्वेस्ट आई है उसे प्रोसेस करेगा, उसके जवाब में डेटा फैच करेगा जो भी हम चाहते हैं, और वो डेटा हमें हमें या यूजर या क्लाइंट को मिल जाएगा। तो उसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फर्स्टली क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट and network servers request this request, and this request is agree or not. This servers is made in the public use, and the process the request, and server dispatch the reply information to the client. इसका एग्जांपल की बात करें, कौन से हो सकते हैं? ईमेल सर्वर, वेब सर्वर। ईमेल सर्वर जिससे हम ईमेल करते हैं,
मैसेज करते हैं, ईमेल। और वेब सर्वर कोई भी किसी भी वेबसाइट को हम सर्च कर रहे हैं, तो जो सर्च करके दे रहा है वो वेब सर्वर ही होते हैं उनके, तभी जाके उसे सर्च कर पाते हैं। इस तरीके के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स। इसमें क्या हो रहा होता है कि दिस आर्किटेक्चर लिंक कंप्यूटर्स हैव द सेम पावर एंड द स्टेटस, देयर इज द नो सेंट्रल सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग। Every peer may share some of its resources like memory and processing power with the entire computer network. Unlike the client-server architecture, peer-to-peer is decentralized system in the which file will be transferred from the one system to another without using the central servers. पीयर टू पीयर में क्या होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन। उसमें जरूरी नहीं है, जैसे अभी क्लाइंट सर्वर में क्या है, सर्वर एक सेंट्रल नोड हो गया, तो सेंट्रल नोड हो गया तो उसके लिए क्या होगा कि एक समय पे 20 यूजर भी उससे यूज कर पाएंगे, 50 भी कर पाएंगे। कई बार आपने देखा भी होगा कि कई, जैसे हम फॉर्म भर रहे होते हैं, लास्ट डेट होती है, तो लास्ट डेट पे बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे क्लाइंट उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी एक लिमिट होगी, मान के चलो कि एक बार में 100 को कर पाएगा, 200 को कर पाएगा, उसकी लिमिट डिपेंड करेगी उसके बैंडविड्थ पर। तो 200 की उसकी लिमिट है, अगर 500 लोग एक्सेस कर रहे होंगे तो वो सर्वर डाउन दिखाने लगता है, वेबसाइट चलती नहीं है। तो सर्वर डाउन मतलब वो सर्वर समझ ही नहीं पाता है कि मैं किसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूं, किसे मैं वो पेज ओपन करके दूं। तो फिर वो तो हो गया, उसमें जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज सर्वर है, सेंट्रलाइज नोड है, तो वो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी वन टू वन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे भी नेटवर्क होते हैं, ऐसे भी वो होते हैं सर्वर में, जैसे बोल सकते हैं कि जो ऑथराइज पर्सन है वही उसे एक्सेस कर पाए, या वन टू वन कम्युनिकेशन वाले, जैसे कोई भी अगर सीनियर आदमी होगा उससे वो उसके लेवल का आदमी होगा वही बात कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि उनके पास सभी अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। तो वन टू वन कम्युनिकेशन का होगा, उस तरीके के जो आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में आएंगे। मतलब उसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती, डिसेंट्रलाइज होता है। और उससे जो, या प्राइवेट सिस्टम्स बोल सकते हैं, पब्लिक सिस्टम्स नहीं, प्राइवेट सिस्टम, विदाउट यूजिंग अ सेंट्रल सर्वर। तीसरा जो नेटवर्क है आर्किटेक्चर है वो, अब कुछ सर्वर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लाइंट भी यूज कर पाए, कुछ उसी में कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती हैं कि उसे उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो भी यूज कर पाए। मतलब एक ऐसा सर्वर बनाया गया है कि उसमें दोनों ही आर्किटेक्चर लगा दिए है, क्लाइंट सर्वर वाली भी फैसिलिटीज बना दी उसमें, और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वाली फैसिलिटीज लगा दी। तो उस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है वो हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स। तो अभी हमने तीन आर्किटेक्चर्स पढ़े। पहला क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं। सेकंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स। थर्ड इज हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, जो कि क्लाइंट एक्सेस करता है सर्वर को, और वो उसके रिक्वेस्ट पे डेटा फैच करता है। पीयर में क्या होता है, एक प्राइवेट वाला मामला होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज होता है उसमें। और हाइब्रिड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। आज फिर उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग तब तक पॉसिबल नहीं है तब तक उसके हम कंपोनेंट्स की बात ना करें, उसके लिए डिवाइसेस की बात ना करें। तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो नेटवर्किंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, और मुझे लग रहा है इस क्लास में जुड़े लोग सभी यूज भी कर रहे होंगे, चाहे वो लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, उसमें इंटरनेट चला रहे हो, तो ये सारे डिवाइसेस कहीं ना कहीं और यूज कर रहे होते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, उसका क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें यहाँ आने वाली। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है एनआईसी। एनआईसी also known as the network interface card. Second component is switch. Third cables. Cables तो सबने देखे होंगे, लैन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, कोएक्सियल या ट्विस्टेड फाइबर, ट्विस्टेड केबल्स, ये सारी चीजें।
Fourth one is hub, fifth is router, sixth is modem. अभी हम एक एक करके ये सारे पढ़ते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या वर्किंग है, और कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग में वो यूज कैसे होते हैं और उनका काम क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती हैं, वो सारी। फर्स्ट इज एनआईसी. एनआईसी इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is a hardware component used to connect a computer with another computer onto a network. बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल सकता. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम होता है कि किसी भी डिवाइस में अगर इंटरनेट चलाना है, एक्सेस करना है, तो एनआईसी लगाना पड़ेगा. या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी डिजिटल सिस्टम या डिजिटल डिवाइस के अंदर इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्ट करना है तो वहां पे एनआईसी लगाना पड़ेगा. एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. उसका काम क्या होता है? काम होता है कि डेटा एक्सचेंज करना, वन सिस्टम टू अनदर. वन सिस्टम टू अनदर की इसलिए बात कर रहे हैं कि दूसरे सिस्टम, जैसे आप बोलोगे सर के इंटरनेट भी तो चलाते हैं हम, तो इंटरनेट भी किससे चला रहे हो? इंटरनेट चलाने का मतलब कोई ना कोई चीज सर्व कर रहे हो, वेब सर्फिंग बोलते हैं उसे. तो वो कहाँ से कंटेंट आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो भी एक मशीन से आ रहा होगा. उस मशीन का क्या नाम होगा? सर्वर होगा. तो वहां से डेटा फैच यहाँ पे करना है या यहाँ से रिक्वेस्ट करना है, एक्सेस करना है, ये सारा चीजें मतलब वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्टिविटी मिलती है. उससे होता क्या है कि डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है. उसकी रेट क्या होती है, ट्रांसफर रेट क्या होगी, किस स्पीड से हो रहा होगा, तो वो अलग अलग उसकी एमबीपीएस में होती है, मेगाबिट्स पर सेकंड में होती है. और इसका एक एड्रेस दिया होता है. एड्रेस होता है मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं उसे. तो मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस होता है. उसमें वो कहाँ पे होता है? उसके अंदर जो कार्ड के अंदर जो चिप लगी होती है उसके अंदर होता है. उसे भी इनकोडेट करके डाला जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी निकाल ले, कोई भी पढ़ ले उसे. जो असाइन कर रही होती है वो एक एजेंसी होती है जिसका नाम होता है IEEE. वो असाइन कर रही होती है. और हर नेटवर्क कार्ड के लिए या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए यूनिक नंबर होता है. और जो यूनिक नंबर होगा वो उसकी PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. तो हर सिस्टम का एक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं. वो यूनिक नंबर होता है. कितने बिट्स का होता है, साइज क्या होगा? वो 48 बिट्स का होता है. तो अभी तक तो हमें ये पता था कि इंटरनेट चलाने के लिए एक आईपी एड्रेस, अभी हमें पता भी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, एक आईपी एड्रेस होना चाहिए. लेकिन जो कार्ड लगा होता है जिससे हम इंटरनेट चला पाते हैं, कई बार बहुत सारे सिस्टम ऐसे होंगे जिनमें इंटरनेट चलना बंद हो जाता है. तो इंटरनेट चलना बंद होगा तो इसी कार्ड की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें. तो इस कार्ड की प्रॉब्लम होगी. तो फिर से इसे देखें, इसका नाम क्या होता है? एनआईसी होता है. उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, जो एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है. या ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा एक्सचेंज करना है वन सिस्टम टू अनदर, वहां पे ये लगाया जाता है. उसकी स्पीड होगी, ट्रांसमिशन रेट होगी या ट्रांसफर रेट होगी, वो किसकी होगी? डेटा की ट्रांसफर रेट होगी. उसका एक एड्रेस होता है, जैसे या तो फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं. वो उसके अंदर ही होता है, जिसे इनकोडेड फॉर्म उसमें फॉर्म में होता है. उसे कोई देख नहीं पाएगा. इसके देख नहीं पाएगा उसका फायदा मतलब चेंज नहीं कर पाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये चलो आने वाली क्लास में बताएंगे कि अगर आपका सिस्टम चोरी हो जाता है तो उसमें फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस का क्या रोल होता है, किस तरीके से होता है. कई बार ये भी सुना होगा आपने कि मेरा मोबाइल या मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तो पकड़ा ही जाएगा. तो वो कैसे पकड़ा जाएगा, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वहां पे बताएंगे. उसमें भी इसका रोल होता है एनआईसी कार्ड का. एनआईसी कार्ड दो तरह के होते हैं. और एनआईसी कार्ड भी दो तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ एनआईसी कार्ड. फर्स्ट इज द वाइड एनआईसी, सेकंड इज वायरलेस एनआईसी.
Wired NIC is present inside the motherboard. Cables and connector are used with wired NIC to transfer the data. जो वायर्ड एनआईसी होता है वो किसी भी सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर होता है, जिसकी कनेक्टिविटी किसी केबल या कनेक्टर से करी जाती है। कंप्यूटर्स के अंदर वही होता है और डेटा ट्रांसफर के लिए वो केबल्स के थ्रू होता है। दूसरा होता है वायरलेस एनआईसी। या कंप्यूटर्स की बात करें उनके अंदर वायर्ड होता है, और वायरलेस एनआईसी की बात करें उसमें क्या होता है कि वो कोई एनआईसी होगा, वो एंटीना, the wireless NIC contains the antenna to obtain the connection over the wireless network. जैसे वाईफाई चलाना, वो सारी चीजें कनेक्टिविटी होती है। तो वाईफाई के लिए जो कार्ड लगा होता है उसे हम वाईफाई कार्ड भी बोल देते हैं। बेसिकली वो वाईफाई कार्ड नाम बोल देते हैं, लेकिन वाईफाई कार्ड नहीं होता है, वाईफाई मॉड्यूल नहीं होता, वो एनआईसी कार्ड होता है। कौन सा एनआईसी कार्ड? एनआईसी होता है वायरलेस एनआईसी होता है, जो लैपटॉप के अंदर भी होता है, मोबाइल के अंदर भी होता है, कुछ अभी जो एडवांस कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर भी ये होता है, जिससे एक हमारा इंटरनेट चलता है। तो बिना एनआईसी के इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। वो दो तरह के होते हैं, वायर्ड और दूसरा वायरलेस। पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें वाईफाई नहीं चलता था, तो केबल के थ्रू इंटरनेट चलाना होता था। अब लैपटॉप में वायरलेस होते हैं, तो उससे वायरलेस भी हो जाता है। वायरलेस वाले में दोनों फीचर्स होते हैं, केबल भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है हब। अब बेसिकली इट इज हार्डवेयर डिवाइस shown in the slide that divides the network connections among multiple devices. When computer requests for some information from a network, it first sends the request to the hub through cable. Hub will broadcast this request to the entire network. All the device will check whether the request belongs to them or not. If not, the request will be dropped. मतलब सिंपल एक हब एक ऐसा डिवाइस है, ऐसे भी बोल सकते हैं हब एक हार्डवेयर डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। नॉन इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि उसके पास जो भी डेटा आएगा वो सबके पास भेज देगा। मतलब बाहर मान के चलो, डिपार्टमेंट के बाहर अगर फोर्थ क्लास मतलब कोई भी आदमी बैठा है, चपरासी भी है, उससे बोला गया है उसे कोई इन्फॉर्मेशन आई वो सबको बता देंगे। उन्हें ये भी नहीं पता किसके लिए बतानी है, किसके लिए नहीं बतानी है। ऐसे हमका भी काम होता है। तो हम क्या, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कोई नेटवर्क सारे सिस्टम्स के पास भेज देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे। और ब्रॉडकास्ट मतलब पूरे नेटवर्क में, इंटर नेटवर्क में। तो जिसके काम की होगी वो तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके काम की नहीं होगी तो वो उसे छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा। तो वो कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है अभी पता चलेगा। तो प्रोसेस यूज्ड बाय द हब कंज्यूम मोर बैंडविड्थ एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द कम्युनिकेशंस। Nowadays, अभी की बात करें तो यूज ऑफ द हब इज द solid and it is replaced by more advanced computer network components such as the switches and routers. हब का आज के समय पे कोई काम नहीं करते हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले ये काम होते थे, वो लगाया जाता था, लेकिन अब उसका कोई नहीं काम होता। अब स्विचेस लगाए हैं, स्विचेस और राउटर्स। और स्विचेस एंड राउटर्स इज बोथ इज द इंटेलिजेंट डिवाइस। मतलब किसके पास डेटा भेजना है, कहाँ पे भेजना है वो होगा। वो आईपी सेट होती है, हर मशीन या हर कंप्यूटर्स के एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। मैक एड्रेस अभी हमने देखा ही है, आईपी एड्रेस हम पढ़ेंगे। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस होंगे, उस एड्रेस के हिसाब से किस किस एड्रेस पे वो डेटा भेजना है तो वहां पे जाएगा। ऐसा नहीं है वो सबके पास चला जाए, तो वो सारा सेट हो जाता है, सारी चीजें प्रोग्राम होती हैं, उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हब में ये फैसिलिटीज नहीं होती। अब नेक्स्ट डिवाइस जो है वो है स्विच। Switch is a hardware device that connects the multiple devices on a computer network. A switch contains more advanced features than hub. It contains more advanced features than hub. The switch contains the updated tables that decides where the data is transmitted or not. Uh, Switch delivers the message to the correct destination based on the physical
edges present in the incoming messages. इसमें क्या होता है, अभी जो हम हार्डवेयर उसकी बात कर रहे थे, हब की बात कर रहे थे, तो हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। और स्विच में क्या होता है कि कहाँ पर डेटा भेजना, किस तरीके से जाना है, तो वो सारा उसके एड्रेस के जो भी एड्रेस डालेंगे उस हिसाब से वो जाएगा। तो जो इनकमिंग मैसेज क्या होगा, आउटगोइंग मैसेज क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करी जाती है। दिखने में इस तरीके से लगेगा जो स्लाइड पे जो दिख रहा है। सिस्को के आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके स्विचेस आते हैं। स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द हब। मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो सबको खबर पहुंचा दे या सबको मैसेज कर दे। It determines the device to whom the message is to be transmitted. जिसे भेजना है, जिसे जरूरत है, यहाँ भेजना है, उसी को भेजेगा। We can say that switch provides a direct connections between the source and destination. ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्शंस होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। It increases the speed of the network. उससे स्पीड पे डिपार्टमेंट का आपको चला गया तो पूरा कोई नहीं बिगड़ेगी और दूसरी लगी तो So we can say that the switch provides the direct connection between the source and destination, so it increases the speed of the network. Next component is routers. Routers is the most important components of network, computer network. It is the hardware device which is used to connect our local area network within the internet connections. किसी भी लैन में, जैसे हमने पिछली क्लासेस में कहीं में पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है, उसमें कहीं भी इंटरनेट की जिक्र नहीं हुई, कहीं पे भी बात नहीं हुई। अगर उसमें भी इंटरनेट चलाना है तो वहां पर राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर काम क्या होता है? इट इज यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स। पैकेट्स इज डेटा टू अनदर नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी पैकेट भेज सकता है, डेटा भेज सकता है। जैसा इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इसका काम क्या होता है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजना, या यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इंटरनेट चलाने का काम करता है। ये प्रोवाइड कौन करते हैं? जो कंपनीज करती हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिन्हें आईएसपी भी बोला जाता है। राउटर जो होता है 3 लेयर में काम कर रहा होता है, बेसिकली लेयर नंबर 3। फर्स्ट जो लेयर होती है उसकी नेटवर्क लेयर होती है, मतलब पूरा होल लेयर का नाम जो होता है ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क लेयर। अभी हम ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये लेयर क्या होती है और इसका और भी क्या वर्किंग होती है। राउटर फॉरवर्ड्स द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन राउटिंग टेबल्स। राउटिंग टेबल होती है ये एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस होता है। इसमें ये भी होता है कि कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, कितने लोग इंटरनेट चला रहे हैं, कितने बजे कनेक्ट हुए थे, कब तक चला रहे हैं, मतलब पूरी टाइमिंग होती है, पूरा लॉग फाइल आती है। यहाँ तक ये भी लॉग फाइल आ जाती है इसके अंदर कि क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या चला रहे हैं, वो सारी चीजें, वेबसाइट लिंक सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। जैसे एक इंस्टीट्यूट लेवल पर अगर हम उसे फायरवॉल लगाएं, उसमें प्रॉक्सी लगाएं, तो वहां पे भी इसी की राउटिंग टेबल में जाके चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन नहीं करनी, सारा काम होता है, क्योंकि एक स्मार्ट या इंटेलिजेंट डिवाइस होता है राउटर। It determine the best path from the available path for the transmission of the packet। इसका ये भी काम होता है कि जब सर्वर तक पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कौन सा ट्रांसमिशन मतलब उसके लिए अवेलेबल पाथ्स होगा, ट्रैक होगा, कहाँ से हम जल्दी पहुंचे हैं। जल्दी पहुंचने का मतलब यह है कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा करना या प्रोसेसिंग टाइम कम करना। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, वो भी इसका काम होता है।
तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज वो सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। सिक्योरिटी मतलब द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क विल ट्रैवर्स द एंटायर केबल बट द ओनली स्पेसिफाइड डिवाइस व्हिच हैज बीन एडेड। ऐसा भी नहीं है कि जो केबल्स लगी है वायरलेसली है उसे कोई इतना आसानी से हैक करना या वहां से डेटा निकालना नहीं हो पाता, क्योंकि वो भी एक फीचर्स प्रोवाइड करता है राउटर। और वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टोग्राफी, हैकिंग और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से रिलायबल बनाना है उसे। अगर कोई सर्वर स्टॉप हो गया तो वो किस तरीके से वो वहाँ पे जवाब देना है, सारी चीजें। कई बार आप सर्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हो लेकिन सर्वर डाउन होता है, वो वेबसाइट नहीं खुल पाती। तो उस चीज को हैंडल और मैनेज भी राउटर ही करता है। राउटर ही आपको मैसेज देगा कि वहां तक रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पाई। तो वो सारे काम भी राउटर ही करता है। परफॉर्मेंस भी अच्छी करने का काम या किस तरीके से नेटवर्क में सारा राउटर का ही काम होता है। राउटर एनहेंसेस द ओवरऑल performance of the network. Suppose there are 24 workstations in the network, generate the same amount of traffic. This increases the traffic load on the network. Routers split the single network into two network of the 12 workstation is reduce the traffic load by the। मतलब यहाँ का इसका यह मतलब हुआ कि मल्टीपल अगर कंप्यूटर्स यूज है वहाँ पर, तो कई बार जैसे वेबसाइट का ही बोले हैं कि लास्ट डेट चल रही होती है, सर्वर डाउन हो रहा होता है। तो सर्वर डाउन हो रहा होता है तो कई बार वेबसाइट को पहला लिंक डालेंगे, ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। डेटा भरने के बाद वो नहीं ओपन होती है, खुलती नहीं है, सबमिट नहीं हो रहा होता। तो जो पहली लिंक उसकी ओपन हुई है वो इसी की वजह से हुई है। राउटर ने क्या किया, उसका एड्रेस वो फैच कर लिया अपने आप। जैसे तुम बार बार उसे करोगे तो जो फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस किया जा रहा होता है, वेबसाइट एक्सेस करी जा रही होती है, वो राउटर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो पहली लिंक तो खुल गई लेकिन उसके बाद का नहीं खुल रहा है, उसके बाद आ रहा है सर्वर डाउन। तो इससे भी क्या होता है, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं एनहेंस कर रही होती है। मतलब सर्वर का जो काम हो रहा होता है वो आधा राउटर ही कर देता है। नेटवर्क रेंज वाला वो तो है एडवांटेज, कहाँ तक रेंज देनी है, किस तरीके से देनी है। रेंज का मतलब ये नहीं है वायरलेसली कनेक्टिविटी। रेंज का मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी सर्वर है वहां तक एक्सेस रखना या वहां तक वो रिक्वेस्ट को पहुंचाना। तो अभी हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े वो ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े। पहला एनआईसी पढ़ा, एनआईसी के बारे में जाना, उसके टाइप्स भी देखे कौन कौन से होते हैं। हब के बारे में जाना, हब क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान भी क्या होते हैं, एडवांटेज स्विचेस के बारे में देखा। राउटर भी देख लिया, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं राउटर्स के। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए स्विच और राउटर्स का, सिंपल ये है कि राउटर का काम होता है इंटरनेट चलाने का, इंटरनेट से कनेक्टिविटी करने का। लेकिन राउटर के पास बहुत लिमिटेड पोर्ट होते हैं, मतलब कुछ ही सिस्टम्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उस सिस्टम्स को बहुत सारे, जैसे एक लैब में 50 सिस्टम्स होते हैं, तो राउटर से 50 सिस्टम नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। केबल्स कैसे पहुंचाएं? तो वहां तक केबल्स पहुंचानी है, किस तरीके से कनेक्टिविटी करनी है, तब स्विच लगाना होगा। तो सिंपल डिफरेंस इसका स्विच और राउटर का ये होता है, राउटर इंटरनेट चलाता है, स्विच का काम होता है कि बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट करने हैं, तो बहुत मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं स्विचेस के। उसमें अलग अलग स्विच के ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 24 का ले सकते हैं, 36 पोर्ट का ले सकते हैं। इस तरीके का जो भी स्विच हमें लेना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ले सकते हैं। मॉडेम, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मॉडेम या उसके और भी कंपोनेंट्स, जैसे अभी कई सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, एनआईसी स्विच, केबल्स, हब, नहीं, hub routers, cables and modem. Uh, we will studying in next class. Okay, thank you. Thank you so much.